that we have is for Dr. Tharoor. So it says that, sir, you've written that India should adopt this particular system. However, our country's biggest problem is our political system, and you being one of the brightest and the biggest leaders, how would you feel about making this as a life's mission actually? I think we all have a number of missions in life, and it depends on the framework one is given to do it. As a parliamentarian, I spend a lot of time just trying to improve the lives of people in Thiruvananthapuram. So maybe in a presidential system one would try and have much more national field of action. But the truth is that that certainly this is an idea I've been writing about and advocating for some time. My first publication of this idea in any seriousness was in my book India from Midnight to the Millennium, which is now 18 years old. So the ideas are very much there. I've kept developing them and come to the conclusions that I've shared with you all today. Thank you, sir. We're just looking forward for more work in the future. Thank you. So the next question that we have is actually for Mr. Nair. So it states, sir, what is the best way to start a debate on this topic among political commentators? Could you highlight a bit? I think you must meet them, convince them that this sort of debate should be started. We should write about it. There is no other way. I mean, say you cannot really give order to them. You have to persuade them to look here. This is a topic worth commenting on, and I'm sure there many people do, just like I have done. So many people have done, and out of that something probably concrete will emerge. थैंक यू सर। अगला सवाल हमारे पास शांता जी के लिए है। सर, आज कोई भी पार्टी शांता सर, आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे संविधान को हाथ लगाने से भी कतराती है। आप क्या सुझाव देंगे? इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है? इसी का इलाज तो ढूंढना है। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी कठिनाई ये हो गई है कि पूरी राजनीति वोट बैंक की राजनीति बन गई है। अब जनमत जागृत होकर पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर करे कि वो सही को सही कहें और सही करने की कोशिश करें। और प्रेजेंट सिस्टम में मुझे एक और डर है, आज के बहुत से नेताओं का वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, उसका बदलना भी नहीं चाहेंगे। उसके लिए प्रबल जनमत जागृत करना होगा। वो आप लोग करेंगे, केवल राजनीतिक नेताओं पर भरोसा मत करिए। जनता को, और जनता करती है। इसी दिल्ली में अन्ना हजारे के वक्त क्या हुआ था, देश की पूरी जवानी सड़कों पर आई थी। तो जनमत जागृत करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए देश के बुद्धिजीवियों को, सब लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके बाद निश्चित रूप से ये होगा जो हम चाहते हैं। धन्यवाद सर। मैं पूछना चाहता हूं दोनों में से, शांता जी से और शशि जी से। शांता सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसा कहा था सबसे अपने जब बात कर रहे थे कि व्यक्ति का राजनीतिकरण हो चुका है इस माहौल में, और आपने पहले कहा था कि जो आप जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहां पे नो वर्क नो पेंशन लागू किया, तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक गुड गवर्नेंस है लेकिन बैड पॉलिटिक्स है। आपकी पार्टी गुड गवर्नेंस के नाम पे आई है। आपने क्या कभी सुझाव दिया है कि भाई अब तो ये जो है गुड गवर्नेंस चलाया जाए और बैड पॉलिटिक्स वाली जो खेल है उसको आप खत्म करिए यहाँ पे? आपसे पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे लगता है कि why your party Congress is stuck to Rahul Gandhi? Even I think you are the better option. You are a better option. Because you are not North Indian. And the most thing is that you are South Indian. And third, very great thing with you that you are world known intellectual. Lot of adjectives. He deserves all. देखिए, मुझे इतना कहना है, Well deserved. ठीक सोचने वाले हर पार्टी में, ठीक सोचने वाले, देश के लिए सोचने वाले और ठीक निर्णय हो, इसका आग्रह करने वाले हर पार्टी में थोड़े बहुत हैं। आज माइनॉरिटी में। इसीलिए मैंने कहा जनमत जागृत होगा तो ये सारी बातें होगी।
गुड गवर्नेंस की आपने जो बात कही, यह है मेरी पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस बात पर बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो ठीक सोचने वाले सभी पार्टियों में जो लोग हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक प्रबल जनमत यदि देश में जागृत होगा तो जो हम चाहते वो हो सकता है। Well, all I can say, to be very honest, I'm very flattered with your kind remarks about me. But you know, parties choose their leadership on political grounds, and there is no question that the very special place that the Nehru Gandhi family has in the imagination of the nation, and therefore also of the workers of the Congress Party, puts them in a particular advantageous position. Now, there have also been leaders in our party who are not members of the family. Our last two prime ministers were not Nehru Gandhis. One was Narasimha Rao, one was Manmohan Singh. But the ruling DNA of the Congress Party is inextricably linked to the DNA of the Nehru Gandhi family. And I think that's something which, I mean, you know, we have our own structures, other parties have their own. I mean, can anybody from the BJP become prime minister who doesn't have the blessing of the RSS? सर, पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी भानु जी को इतनी अच्छी किताब निकालने पे। और आपसे ये सवाल है, ये जाली जो है ये प्रेजेंट हाउस की तो नहीं है जो इसमें फोटोग्राफ? ये कार्तिका जी आप भी नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़े सवाल पूछा है कि ये क्या है। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मुझे भी यही बताया गया कि ये जो राष्ट्रपति भवन की जो जाली है उसका क्लोजअप। अच्छा, अब मेरा सवाल छोटा सा ये है, क्योंकि इस वक्त महान दिग्गज हमारे सामने बैठे हैं जिसपे पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक की नजर है। क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने के बाद इंडिया में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी? Question, Mr. Tharoor? Dr. Tharoor, please. Bhrashtachar is not linked, I think, to the political system. It's within our people. I mean, the problem with our system is different. We talked about performance, accountability, and all that. Corruption, I'm sorry to say, is a character flaw. It's partly due to the, Shanta Kumar ji pointed out that the system, but I'm afraid that whether you have a presidential or a parliamentary one, there is still black money around. People will still use it to influence those who can pass laws, those who can make executive decisions. I don't think whether it's presidential or parliamentary will change that. I think we have to change ourselves. I think Anna Hazare missed a great opportunity as a Gandhian Neta. He should have done what the Mahatma would have done. He should have told everybody, every one of his rallies, I only want one thing from you. You take a vow never to give or accept a bribe. After all, for any corrupt act, there has to be a giver and a taker. If we all don't give, then who will take? Who will be able to take? But the truth is we give. We want a shortcut. We want to avoid a fine. We want to get something faster than somebody else. We want a benefit that is not due to us, whatever it may be, and we pay. And once you enable it, the system works. It's not just the very big ticket corruption that we read the big headlines in the papers, 1,76 crores, whatever. I don't even know what these numbers would look like in a suitcase. You know, what is it? The truth is that the real corruption that hurts most Indians is when some poor person's father has passed away and he can't get a death certificate without bribing a municipal clerk. Or a pregnant woman from the laboring working class community who is entitled to a bed in a government hospital cannot, she has to deliver her child on the floor unless she has money to pay a bribe to the orderly. Or the widow who won't get her pension processed unless she bribes a clerk. This kind of thing is rampant throughout our society, and it has nothing to do with presidential or parliamentary. I would like to take 2 minutes. Let me try this. आपका सवाल बिल्कुल पते का है और ये मेरे किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि अंततः सिस्टम से क्या मिलना चाहिए। मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं कि एक सोसाइटी को सिस्टम से विजन मिलनी चाहिए, उसको फेयरनेस मिलनी चाहिए और उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई सिस्टम इन तीनों चीज़ों में कामयाब होता है तो मेरे विचार से वो बेहतर सिस्टम है।
विजन के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हम सब जानते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। विजन तब बनती है सोसाइटी की या नेशन की जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, नेशन वाइड होता है। अभी आप कुछ लोग शायद अमेरिका में जो इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है उसको स्टडी कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि जो वो उस तरीके का जो डायरेक्ट इलेक्शन नेशन वाइड होता है उससे कैसे ग्राउंड से विजन बनती है, सोसाइटी डिसाइड कि हमें किस दिशा में जाना है। फेयरनेस इसलिए जरूरी है कि आप सिटीजन्स जब एफर्ट करते हैं तो उसका अगर आपको फेयरली रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो वो सिस्टम खराब है। उसको आप करप्शन कहते हैं कि करप्ट सिस्टम में फेयरनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो मैं इसमें डॉक्टर थरूर से डिसएग्री करता हूँ कि ये हमारे डीएनए में है। मैं बहुत इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। इंडियंस कहीं किसी से कमजोर नहीं है, कहीं किसी से कम नहीं है। हम लोग करप्ट नहीं है, हम लोग इनकॉम्पिटेंट नहीं है, हम लोग, हमारे डीएनए में कोई कमजोरी नहीं है। टू थिंक दैट वे इज एक्चुअली बीइंग अ रेसिस्ट। वी हैव नथिंग रॉन्ग विद अस। और ये फैशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरू हो गया कि जब अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हमने बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और अब ये फेल होता है तो द ओनली कंक्लूजन इज दैट मैन इज वाइल। Wrong. The system actually does have a huge impact on the character of the people. The system actually builds the society. System actually builds morality in society, and you have that when you have a fair system. American system में fairness इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत decentralized system है। उसमें जो उसकी नींव है, जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती है, वो ये है कि वो लोकल गवर्नेंस पर बेस्ड है। पीपल रियली टच एंड फील देयर गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। और लोकल लेवल पर जब डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी लोगों को मिलती है, मेयर्स, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, काउंटी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स, तो उस वक्त लोगों को जब डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी मिलती है तो करप्शन अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। अमेरिका में इस तरीके की करप्शन नहीं है जिस तरीके की करप्शन इंडिया में है। क्या इसका मतलब ये है कि करप्शन 100% खत्म हो जाएगी? ऐसा ना कहीं हुआ है, ना अमेरिका में हुआ है, ना यहाँ भी होगा। पर वो करप्शन जो रोजमर्रा एक आम इंसान को तंग करती है, वो करप्शन अमेरिका में नहीं है। और उसका ये कारण है मुख्यतः कि वहाँ लोकल गवर्नेंस पर वो सारी उसकी सिस्टम की नींव जो है वो रखी हुई है। और भी बहुत से कारण हैं। दूसरा कारण ये है कि इंस्टीट्यूशंस अलग अलग हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी और एक बॉडी है जो सुप्रीम है, ये सुपरमेसी ऑफ एनी काइंड इन एनी सिस्टम इज अ बैड आइडिया। सुपरमेसी किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी को सर्वाधिकार कहीं नहीं होना चाहिए। इस पर उसकी नींव रखी हुई है उस सिस्टम में। तो वहां इस लेवल की करप्शन इसलिए भी नहीं है कि ओवरसाइट है। एग्जीक्यूटिव जब कोई एक्शन लेती है तो उसके ऊपर लेजिस्लेटिव की वास्तव में ओवरसाइट होती है। यहाँ वो ओवरसाइट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक है, उसी में एग्जीक्यूटिव बैठा है, उसी में लेजिस्लेटिव बैठा है, तो ओवरसाइट कहाँ से आ जाएगी? तीसरा वहाँ जो करप्शन खत्म होने का या कम होने का कारण है वो ये जो तीसरा मैंने मेरिट बताया कि एक सिस्टम में होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करने के एडवांटेजेस या अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ अमेरिकन सिस्टम में हम सब जानते हैं कि आप डायरेक्ट इलेक्शन करके कितना आपका पार्टिसिपेशन बढ़ता है इंडियन सिस्टम के मुकाबले। पर और भी बहुत कारण है जिसकी वजह से वहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो वो छोटे छोटे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ 90,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उस कंट्री में। तो वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जब वहाँ के सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सिस्टम मेक्स द सोसाइटी लेस करप्ट, सिस्टम मेक्स द सोसाइटीज कैरेक्टर, सिस्टम मेक्स पीपल मोर मॉरल। आई strongly disagree that there is anything wrong with the DNA of the Indian people. We have shown that many times, and
the obvious current example is that it's the same Indians who go to America or another country and perform superbly. So there's nothing wrong with our DNA. We are the second highest earning category in America right now. Highest median income. Okay. We are the highest or in the top 3 as far as education levels are concerned. So the same Indians, when they go out of India, perform superbly well. I'll give you another example from India. When we were fighting in the freedom struggle, we were fighting on moral grounds. We were, Gandhiji led us to that high level of morality. It's the same people. We succeeded in the freedom struggle because Gandhiji led us with a moral, on moral grounds. So nothing wrong with Indian people. Let's change the system. I think we will fix 90% of our problems. मेरा नाम पीके खुराना है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मुझे सौभाग्य मिला था शांता कुमार जी को आज से कई साल पहले सुनने का, जब उन्होंने पंचतंत्र शोध संस्थान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भाषण दिया था। मुझे सौभाग्य मिला भानु जी के साथ कई साल काम करने का दिल्ली हिमाचल, और शशि थरूर जी को सुनने और पढ़ने का, इनके पार्लियामेंट की डिबेट को सुनने का, और कुलदीप नायर जी को तो लगातार पढ़ने का। मैं आज कहूंगा कि शायद जब आप 3 दिग्गज पैनलिस्ट थे यहाँ पे, तो मेरी उम्मीद ये थी कि आप शायद ये जरूर कहेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये फ्लॉ है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंपैरेटिवली ये खूबियां हैं, और उन खूबियों को भी उभारेंगे। शायद वो डिस्कस नहीं होगा, शायद पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा हुई, सॉरी। बट भानु जी ने अभी मेरे क्वेश्चन को काफी हद तक आंसर किया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बता करके, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो आप खूबियां बतलाना चाह रहे हैं, उसको अभी हम लोगों को, जनता को शायद उसके बारे में आपने ज्यादा नहीं बताया, जरा उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। मुझे मेरा ये शायद ये आज पैनल में ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ये बातचीत एंटी नेहरू से शुरू हुई। किताब में एंटी नेहरू नहीं है, किताब एंटी नेहरू नहीं है। ये गलत रीडिंग है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें एंटी कुछ भी नहीं है। किसी पार्टिसन, किसी तरीके की पार्टिसनशिप इस किताब में नहीं है। मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं, वो भी सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में। मैंने उनके सेक्युलरिज्म पर, उनके ये कि वो डेमोक्रेट थे, इस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, उसमें कोई उसको छुआ भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि ये सिस्टम बना कैसे। मेरा सवाल ये था कि आखिर ये सिस्टम हमने चुना क्यों? मेरा ये सवाल था, मैं इसको आंसर करने चला था कि आखिर ये सिस्टम हमने, इतने बड़े बड़े दिग्गज, नेहरू जी जैसे, अंबेडकर जी जैसे, पटेल जी जैसे, आखिर इन लोगों ने ये सिस्टम चुना क्यों? जब आप उसको पढ़ेंगे कहानी को, तो वो कहानी सिर्फ ये दिखाती है कि ये सिस्टम कैसे और क्यों बना। और अब आप उसका जब काउंटर पढ़ते हैं कि अमेरिकन सिस्टम कैसे और क्यों बना, तो मुझे लगता है कि कहानी या स्थिति तो वहीं स्पष्ट हो जाती है। The story of the making of the 2 constitutions tells you the whole picture, and that is what I have done in a big, the big part of the book does that. आपका जो सवाल है कि समरी क्या है, तो मैंने अभी 5, वो सब लोगों को अच्छे लगते हैं 5 ये और 5 वो कारण, तो 5 कारण why parliamentary system is bad for India. Single center of power risks monocracy. Single center of power risks monocracy. ये इशारा सब लोगों ने यहाँ किया है, चाहे जितना मर्जी पॉलिटिकली करेक्ट हो। सब लोगों ने ये कहा है, इंदिरा गांधी जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक, कि मोनोक्रेसी का मतलब एक छत्र राज, सर्वाधिकार, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से इंदिरा गांधी जी कामयाब हुई। और ये नैयर साहब का कहना बिल्कुल गलत है कि इंदिरा गांधी जी ने इस सिस्टम को कंसिडर किया था और इसलिए ये इसके इतने अब फेवर में नहीं है। 3 साल पहले आपने खुद लिखा था कि हमको इस सिस्टम के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए,
दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंसिडर नहीं किया था। डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है, वो जो एक रूमर्ड जो डॉक्यूमेंट था टू कंसिडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो जब आप उसको देखते हैं तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिवाय एक चीज के कि जो प्रेसिडेंट होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। स्वरण सिंह का पढ़िए। हाँ, स्वरण सिंह की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी उसने ये नकारा है कि हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा लाभ था, पावर को ग्रैब करना ज्यादा आसान था, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने वो सिस्टम नहीं अपनाया और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही वो रही। तो पहला जो इसका कारण है ये है कि इट रिस्क्स डेमोक्रेसी। दूसरा ये है कि इट एनकरेजेस फ्रेगमेंटेशन। पार्टियों को सत्ता दी जाती है, तो जब आप पार्टी को सत्ता देते हैं तो लोग नेचुरली ये चाहते हैं कि मेरी भी पार्टी हो। तो जब आप पार्टी को सत्ता देंगे तो फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, सब अपना अपना आउटपुट बनाएंगे, सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो है कि लैक ऑफ ओवरसाइट फ्यूल्स करप्शन। जो यहाँ से सवाल उठा था कि करप्शन का क्या होगा, ओवरसाइट नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक ही है, पार्लियामेंट ही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डायरेक्टली लोगों को अकाउंटेबल हैं, एक दूसरे को नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेटिव हिला नहीं सकता है, लोग हिला सकते हैं, लेजिस्लेटिव नहीं हिला सकते, लेजिस्लेचर नहीं हिला सकता। तो लैक ऑफ ओवरसाइट फ्यूल्स करप्शन। चौथा यह है कि मेजॉरिटी रन्स अमक मेक्स बैड लॉज। जब आप एक छत्र राज है, एक मेजॉरिटी रूल है, वो मेजॉरिटी जो चाहे वो कर सकती है, ये गलत है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी व्यूज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि उनको क्रेडिट मिल जाएगा या ये हमारा टाइम है, हम रूल कर रहे हैं, हमको किसी की नहीं सुननी है, इसलिए क्योंकि आपके लॉज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। यू विल मेक बेटर लॉज व्हेन यू लिसन टू द माइनॉरिटी व्यूज। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैंने साइट किए हैं कि लॉज बन गए और उसमें बाद में प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद 40-40 गलतियां निकलती हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक मेजॉरिटी अंधी हो जाती है, वो फिर अंधी होके चलती है। और पांचवा जो मैंने रीजन नोट किया है, 5 reasons why parliamentary system is bad for India, and this is, I think, the biggest reason that Dr. Tharoor has highlighted in his writings, that it makes poor leaders. वो किस लिए? छोटे छोटी कंस्टिट्यूएंसीज से लोग जीत कर आते हैं, वहां पैरोकियल कंसिडरेशंस पर, कास्ट बेसिस पर या करप्शन पर आप इलेक्शन जीत सकते हैं। जो छोटी कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं, दे आर नॉट विजनरी लीडर्स, दे आर डील मेकर्स। जब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नेशन वाइड या स्टेट वाइड इलेक्शन में आपको जीतना पड़ता है, तो आप पैरोकियल बेसिस पर या कास्ट बेसिस पर या करप्शन करके इलेक्शन को नहीं जीत सकते हैं। तो उसकी वजह से लीडर्स अच्छे बनते हैं। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका में जो हो रहा है, उसमें आप देखिए कि एक पार्टी के 16 कैंडिडेट्स हैं, दूसरी पार्टी के 4 कैंडिडेट्स हैं। 2 साल तक दे विल बी इन द पब्लिक आई ऑन अ डेली बेसिस। उनकी एक एक चीज की स्क्रूटनी, एक एक पॉलिसी पर बहस, एक एक चीज पर उनके फैमिली और पर्सनल और उनका वोटिंग रिकॉर्ड सब कुछ खंगाला जाता है। तो उससे जब लीडर निकल कर आते हैं तो वो चमकदार लीडर होते हैं। हमारे सिस्टम में छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं, और हम अखबार वाले जानते हैं, आप पार्लियामेंट्रियन सारे जानते हैं कि वो इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए 5 जो आपने कहे, ऐसे ही 5 reasons why presidential system is good for India। पहला कारण मैंने लिखा है repels authoritarian tendency। जो नैयर साहब का जो एक इसके बारे में अंदेशा है, जो इनको खतरा लगता है, उसका बिल्कुल उल्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने जैसे पहले कहा, मोनोक्रेसी के, ऑटोक्रेसी के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रखा, प्रेसिडेंशियल नहीं चुना। इसीलिए डगॉल ने फ्रांस में पार्लियामेंट्री सिस्टम का हाइब्रिड बनाया, उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चुना। उनको हाइब्रिड में ये एडवांटेज मिलता था कि प्रेसिडेंट बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर विदाउट एनी ओवरसाइट। तो ये उल्टा है, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है वो इस सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कम है।
कम क्या है ही नहीं। उसका एक कारण डॉक्टर थरूर ने बताया कि लोकल गवर्नेंस होने की वजह से अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट को कोई शक्ति नहीं हिला सकती है सिवाय लोगों के। कोई वहां प्रेसिडेंट या कोई प्रेसिडेंट्स रूल या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पीपल इलेक्ट a state government and only people can change that state government, nobody else। तो उसकी वजह से भी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट, अकाउंटेबल, स्ट्रांग होती हैं और चांसेस ऑफ ऑटोक्रेसी कम होते हैं। तो बहुत से कारण है, ये सारे किताब में है। दूसरा कारण जो 5 reasons why presidential system is good for India, it relies more on state governments, local governance, governance that touches people the most। जो आम आदमी को जो छूती है वो तो आपकी स्टेट है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम वीक कर लेते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और बहुत बड़ी शक्ति है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस रादर देन इंडिविजुअल्स, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जी इंदिरा गांधी जी आ गई तो लोग ताली बजाने लगे और ये सोचा कि बस अब सारे इंडिया के संकट जो है खत्म हो जाएंगे। मोदी जी आ गए तो फिर ताली बजाने लगे कि सारे व्यक्ति पर बेस्ड है। हमको व्यक्ति पर बेस्ड गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड गवर्नमेंट चाहिए। फोर्थ, सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन नॉट ऑफ रूल। मैंने पहले भी कहा कि पार्टिसिपेशन करने के इतने अवसर हैं लोकल गवर्नेंस होने की वजह से, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से, डायरेक्ट इलेक्शंस होने की वजह से, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा हैं इंडिया के मुकाबले। एक अमेरिकन सिटीजन 9 या 10 रिप्रेजेंटेटिव्स चुनता है वगैरह वगैरह। तो आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लोग सिर्फ इलेक्शन तक ही पार्टिसिपेशन नहीं होता है, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और लास्ट रीजन वाई 5 reasons why presidential system is good for India, once again it produces better leaders। तो इसके साथ मैं आपकी समरी का जो क्वेश्चन है उसको सर अगर आप अलाउ करें तो एक कमेंट और इट इज नॉट ए क्वेश्चन, जस्ट कमेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट I won't take more than 1 minute. I won't take more than 1 minute. I'll go by watch 1 minute. Thank you very much.